Praise the Lord and greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे खुदावंद और मर्जी यीशु के पाक नाम में आप सबों को मैं ग्रीटिंग्स कहता हूं और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। This evening, before we worship our God, let us turn our Bibles to the book of Psalms 103, verses 1 to 7. आज शाम को हमारे खुदा की इबादत करने से पहले मज़ामिर की किताब चैप्टर 103 और आयतें 1 से लेकर 7 तक हम देखेंगे। Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with the loving kindness and tender mercies, who satisfieth thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. The Lord executeth righteousness and judgment for all that are oppressed. He made known his ways unto Moses, his acts unto the children of Israel. ए मेरी जान यहोवा को मुबारक कह और जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कहे। ए मेरी जान यहोवा को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सिर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। तू उकाब की मानिंद असर ए नाव जवान होता है। यहोवा सब मजलूमों के लिए सदाकत और अदल के काम करता है। उसने अपनी राहें मोशे पर और अपने काम इस्राएलियों पर जाहिर किए। Let us kneel down for his mercies so that we can meditate on this word. उसके कलाम पर मुतला करने के लिए उसकी रहमतों के तालिब होके हम घुटने टेकें। Our loving heavenly gracious Father, we thank you and we praise you for this evening. ए हमारे प्यारे आसमानी बाप, आज शाम को लेकर हम आपका शुक्र अदा करते हैं। Father, as we are meditating on your word, Father, help us to understand your word. ए खुदावन, जैसे ही हम आपके कलाम को मुताला करते हैं, आपके कलाम को समझने का रहम हम पर अता फरमाएं। You are such a great God, there is none like you. Help us to worship your holy name. तू तो अजीम खुदा है और तेरे जैसे कोई और नहीं है, इसीलिए आपके पाक नाम की इबादत करने का रहम हम पर अता फरमाएं। Father, while we are meditating on your word, help us to understand and receive the truth so that we may worship you in truth. खुदावन, जैसे ही आपके कलाम का मुताला हम करने वाले हैं, उसे समझने का रहम हम पर अता करें ताकि हम आपके कलाम की सच्चाई को हम जान पाएं। Father, as an humble servant, we stand here, Lord, and Lord, hide us under your arms. Cover us with the precious blood of our Lord and Savior Jesus Christ. खुदावन, हम आपके हलीम बंदे बनकर यहाँ हम घुटने टेकते हैं, हम पर रहम करें और खुदावन यीशु के पाक खून में हमें धो करने को पाक फरमाएं। Father, strengthen all of us and speak with all of us. Use us for your glory. खुदावन, हम सबों को मजबूत बनाएं और हम सबों को आपके जलाल के लिए मुस्तमिल रखें। We ask you, Father, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे खुदावंद और मुनजी यीशु के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Here in this verse, first two verses are saying that we and with all that is within us and including our soul that we should worship our God. यहाँ पहली आयत में हम देखते हैं कि हमको हमारी जान से और हमारे अंदर जो कुछ भी है उस तमाम शय से हम हमारे खुदा की इबादत करेंगे। The word of God here telling us that bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. यहाँ पे खुदा का कलाम यूं फरमाता है कि ए मेरी जान यहोवा को मुबारक कह और जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कहे। We should worship our God Jehovah.
हमें हमारे आसमानी खुदा यहोवा की इबादत में लगे रहना चाहिए। It is His holy name. ये यहोवा जो है वो उसका कुद्दूस नाम है। Holy name means there is none like Him. होली नेम या कुद्दूस नाम जब हम कहते हैं तो उसके बराबर कोई और माबूद नहीं है। He is alone God, and His name alone is holy name. वो ही अकेला खुदा है, माबूद है, और उसका नाम ही एक अकेला नाम है। And to worship Him, we should always remember all His works, all His benefits that He did in our life. और उसकी इबादत करने के वास्ते हमारी जिंदगियों में जो कुछ उसने किया है उसके पूरे अमाल को हमें एक बार याद करना पड़ेगा। When we remember benefits or works that our God did in our lives, we will get more strong faith. जब हम हमारी जिंदगियों में हमारे खुदा ने जितने भी अजाइब और गराइब किया है उन सबों को जब हम याद करेंगे तो हमारा ईमान जो है वो और मजबूत बन जाएगा। When we meditate on all His works, our hearts will stir up to worship Him. जब हम उसके अजाइब और गराइब पर जरा तवज्जो करेंगे तो हमारे दिल हमें जी उठेंगे। Here, from verse number 3 to 7, we will see 10 things which makes us to worship our God. यहाँ हम अगर देखें आयत नंबर 3 से लेकर आयत नंबर 7 तक, यहाँ पे 10 बात हम देख सकते हैं जो हमारे खुदा ने हमारे लिए मतलब उसके लोगों के लिए, बंदों के लिए किए हैं। These 5 verses will say 10 things about our God. इन 5 आयतों में हमारे खुदा के बारे में 10 बातें हम पढ़ सकते हैं। First, in verse number 3, who forgiveth all thine iniquities. पहली बात आयत नंबर 3 में हम पढ़ते हैं कि वो हमारी सारी बदकारी को बख्शने वाला है। Our God is the one who forgives. He is a forgiver of. वो हमें बख्शने वाला है, मुआफी बख्शने वाला है। He forgives us. वो हमें मुआफ कर देता है। He forgives our iniquities, all things that we committed against Him. उसके खिलाफ जितनी भी बदकारी हमने की है, हमारे गुनाहों को, बदकिरदारी को वो माफ करने वाला खुदा है। We all are sinners according to the word of God. खुदा के कलाम के मुताबिक हम सब के सब तो गुनहगार हैं। We sin and come short of the God's glory. हम तो बदकिरदारी करते हैं, इसीलिए खुदा के कलाम के खिलाफ गुनहगार बनते हैं। And according to the Romans, that we are sinners, God showed, He commended His love towards us. लेकिन हम पढ़ते हैं कि रोमियो की किताब में कि जब हम गुनहगार ही थे तभी खुदा ने हमसे अपनी मोहब्बत रखी है। He commended His love towards us that we are sinners. जब हम गुनहगार ही थे तो खुदा ने अपनी मोहब्बत हम पर जाहिर की। Chapter 5 verse number 8 says, God commendeth His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. रोमियो की किताब बाब नंबर 5 और आयत नंबर 8। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो माशियख हमारी खातिर मुआ। God forgives us हमारा खुदा हमें मुआफ करने वाला है because He is such a loving God. क्योंकि वो इतनी बड़ी मोहब्बत दिखाने वाला है। 1 John chapter 1 verse number 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. पहला यूहन्ना 1:9। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। Our God is a faithful God. He will forgive us if we confess our sins. हमारा खुदा बहुत आदिल खुदा है, वफादार खुदा है, इसीलिए अगर हम अपने गुनाहों को उसके पास आकर इकरार करें तो वो हमें बख्शता है, मुआफ करता है। And also Matthew chapter 9, our Lord Jesus Christ says, इतना ही नहीं बल्कि मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 9 में हमारे खुदावंद यीशु यूं फरमाते हैं। Matthew chapter 9 verse number 2, मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 9 और आयत नंबर 2 and also verse number 6. और 6 भी आयत। And behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on the bed. And Jesus, seeing their faith, and said unto the sick of the palsy, Son, be of good cheer, thy sins be forgiven thee. और देखो, लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशुआ ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह मुआफ हुए। And verse number 6 says, 6 आयत में,
But that ye may know that the Son of Man hath power on earth to forgive sins, then saith he to the sick of the palsy, Arise, take up thy bed, and go unto thine house. उस छठी आयत, लेकिन इसलिए कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है, उसने मफलूस से कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। Our Lord Jesus Christ had the power on earth to forgive sins. हमारे खुदावंद यीशुआ को इस जमीन पर इंसानों के गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। When we will be forgiven, when we are forgiven, surely we will be healed. जब हमें मुआफी बख्शी जाती है तो हमें शिफा भी मिल जाती है। Let us come back to the Psalm 103. वापिस आएंगे मज़ामिर की किताब बाब नंबर 103। And the second thing about our God, this verse says that who healeth all thy diseases. और यहाँ पे दूसरी बात जो लिखा हुआ है हमारे खुदा के बारे में वो ये है कि वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। We're all wounded, we're all full of disease. हम सब जख्मी हैं, हम सब मरीज हैं। And also we have the spiritual disease in our hearts. हमारे दिल के अंदर रूहानी बीमारी है। That is very important that we should understand we are full of disease in our heart. हमें याद रखना चाहिए कि हम सबों के दिलों के अंदर गुनाह की बीमारी है। Jeremiah chapter 17 says, हम जानते हैं कि इर्मिया की किताब बाब नंबर 17 verse number 9, और आयत नंबर 9 में लिखा हुआ है, The heart is deceitful above all things and desperately wicked, who can know it? दिल सब चीजों से ज्यादा हीलाबाज और लाइलाज है, उसको कौन दरियाफ्त कर सकता है। We are full of deceitful and we are wicked. Our heart is full of disease. हमारे दिल में बहुत बड़ी रियाकारी है, वो लाइलाज बीमारी से पड़ा हुआ है और इसका कोई इलाज नहीं है। Only God knows the condition of our heart. हमारे दिलों की हालत सिर्फ और सिर्फ खुदा जानता है। It is not the physical heart which we can scan and learn about the disease in the heart. यहाँ पे एक जिस्मानी तरीके से बताया नहीं गया, जैसे कि दिल का अगर कोई मर्ज बनता है तो स्कैन करके दिल का उसका मर्ज पता कर सकें, But it is the heart which leads man to choose his life. लेकिन उस दिल के बारे में जिक्र किया गया है जो इंसान को अपने जहन में आगे चलाता है और अपनी जिंदगी के फैसलों पर या फैसले करने पर करने के लिए उसे आगे ले जाता है। It is the heart of a man which reveals that what type of man he is. एक इंसान के दिल से ही पता चलता है कि वो इंसान किस तरह का इंसान है। So, word of God is telling us that our heart is full of deceitful above all things. इसीलिए खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि खुदा का कलाम यूं फरमाता है कि इंसान का दिल जो है वो सबसे बड़ा हीलाबाज है और हर एक इंसान को जानना चाहिए कि वो अपना दिल ज्यादा ही हीलाबाज है। But we have a God who heals us. लेकिन हमारा खुदा कैसा है? हमारा खुदा हमें शिफा बख्शने वाला खुदा है। He healeth all our diseases. वो हमारे सारी बीमारियों को वो बदलकर हमें शिफा बख्शता है। Our God promised in Exodus chapter 15 verse number 26. हमारे खुदा ने हमसे वादा किया था, वो कहाँ हम पढ़ते हैं? खुरूज की किताब में 15वां बाब और आयत नंबर 26 में पढ़ते हैं। Exodus chapter 15 verse number 26, God promised this and said, If thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. हम पढ़ते हैं खुरूज की किताब बाब नंबर 15 और आयत नंबर 26, अगर तू दिल लगाकर यहोवा अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आईन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी
तुझ पर कोई ना भेजूंगा क्योंकि मैं यहोवा तेरा शाफी हूँ। And to heal us from our diseases, God gave His only begotten Son for us. और हमारी सारी बीमारियों से हमें शिफा बख्शने के वास्ते खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशुआ को हमारे वास्ते बख्श दिया। Coming down to this earth, our Lord Jesus Christ wounded for our transgressions. इस जमीन पर आते हुए खुदावंद यीशुआ ने हमारे गुनाहों के खातिर जख्मी हुआ। Coming down to this earth on the cross, He was bruised for our इस iniquities. जमीन पर आकर हमारी खातिर हमारे खुदावंद यीशुआ को सलीब पर मसलूब मकतूल होना पड़ा, हमारी सारी बीमारियां उठानी पड़ी The chastisement of our peace was upon Him. और हमारी सलामती की सजा जो है वो उसके ऊपर आ गई। Let us read Isaiah chapter 53 verse number 5. यशायाह की किताब चैप्टर 53 पढ़ेंगे और उसमें आयत नंबर 5 पढ़ेंगे। For He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बाइस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। Through the wounds and stripes of our Lord Jesus Christ, we are healed. हमारे खुदावंद यीशुआ के मार खाने से हमें शिफा मिली है। Our God is a God who heals us. He is a healer. हमारा खुदा कौन है? हमें शिफा बख्शने वाले हमारे शाफी हैं। And He's promising us in Jeremiah chapter 30 verse number 17. और वो यिर्मयाह की किताब बाब नंबर 30 और आयत नंबर 17 में वो हमसे वायदा करता है, For I will restore health unto thee, and I will heal thee of thy wounds, saith the Lord. क्योंकि मैं फिर तुझे तंदुरुस्ती और तेरे जख्मों से शिफा बख्शूंगा, यहोवा फरमाता है। And our God is not only forgiver and healer, हमारा खुदा जो है वो सिर्फ मुआफी बख्शने वाला और शिफा बख्शने वाला ही नहीं बल्कि verse number 4 it says that He is our Redeemer. मज़ामिर की किताब 103 की 4 में हम पढ़ते हैं वो हमारा फिद्या देने वाला है, Who redeemeth thy life from destruction. वो तेरी जान हलाकत से बचाता है। Isaiah chapter 43 verse number 1 says, यशायाह की किताब चैप्टर 43 और आयत नंबर 1 में हम पढ़ते हैं, Isaiah chapter 43 verse number 1. यशायाह की किताब 43 की 1, But now, thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, fear not, for I have redeemed thee, I have called thee by thy name, thou art mine. और अब ए याकूब, यहोवा जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ए इस्राएल तुझको बनाया यूं फरमाता है, खौफ ना कर क्योंकि मैंने तेरा फिद्या दिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। Our God who knows us by name, He calling us and He redeemed us. हमारा खुदा जो हमारे नाम जानता है वो हमें बुलाता है और हमें बचाता भी है। And according to Titus chapter 2 verse number 14, और तीतुस की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 14 में God sent forth His only begotten Son, who gave Himself for us that He might redeem us from all iniquity. यहाँ पे लिखा हुआ है कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को भेजा ताकि वो हमारे वास्ते हम फिद्या होकर हमें तमाम बेदीनी से छुड़ाए। Our God is the Redeemer who redeems us from all iniquity. हमारा खुदा हमें छुड़ाने वाला है जो तमाम बेदीनी से हमें छुड़ाता है। And also here Psalm 103, another word is being written here. और मज़ामिर की किताब 103 में और एक लफ्ज यहाँ लिखा हुआ है, He crowneth us with the loving kindness and tender mercies. वो आयत नंबर 4 दूसरा हिस्सा, नीचे का हिस्सा, वो तेरे सिर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। Our God is a crown giver. हमारा खुदा जो है वो हमें ताज पोश करने वाला खुदा है।
He crowneth us with the loving kindness and tender mercies. वो शफकत और रहमत का ताज हमें पहनाता है। These are enough in our life. हमारी जिंदगी में हमारे लिए इतना तो काफी है। While we are living on this earth, we need God's loving kindness and His tender mercies. जैसे ही हम इस जमीन पर जीते रहते हैं, खुदा की शफकत और रहमतें हमारे लिए काफी हैं। Whatever the situations we may face, but with loving kindness, if God is with us, we fear for nothing. इस जमीन पर हम जैसे भी जिए, कितनी भी मुश्किलात तकलीफों से हम गुजरें, जब खुदा की शफकत और रहमत हमारे साथ होंगी तो वो हमारे लिए काफी हैं। And not only that, He crowned us with glory and honor also. इतना ही नहीं बल्कि वो हम पर जलाल और इज्जत के ताज भी रखता है। Psalm 8 verse number 5 says, मज़ामिर की किताब बाब नंबर 8 और आयत नंबर 5। For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honor. क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया है और जलाल और शौकत से उसे ताजदार करता है। Our God is the one who crowns us. He is the crown giver. हमारा खुदा हमें ताजदार करने वाला खुदा है। James chapter 1 verse number 12. हम पढ़ते हैं याकूब की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 12। James chapter 1 verse number 12. याकूब की किताब 1 की 12। Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत रखने वालों से वादा किया है। Those who love him and those who stand or fall not in temptation, for them God promised the crown of life. जो लोग खड़े रहते हैं और आजमाइशों में गिरते नहीं हैं, खुदा उनके लिए जिंदगी का ताज वो तैयार रखा है। And also those who complete their race of faith, for them also God promised the crown of righteousness. इतना ही नहीं बल्कि खुदा ने जो अपनी उम्मीद का दौड़ जो है उसमें कायम रहकर दौड़ता है, उन सबों के लिए खुदा जिंदगी का ताज वादा किया है। 2 Timothy chapter 4 verses 7 and 8. दूसरे तिमोथी की किताब चैप्टर 4 और आयत नंबर 7 और 8। I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा, आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुंसिफ यानी खुदावन मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हों। Here, this great man of God finished good fight and his course, and he was promised with the crown of righteousness. यहाँ पे खुदा का बंदा कहता है कि वो उसने अपना दौड़ पूरा किया है, इसीलिए वो ताज वो पाएगा जो खुदावंद उनके लिए देने वाला है। Word of God is telling the crown of righteousness not only for him, but unto all them also that love his appearing. यहाँ पे लिखा हुआ है कि रास्तबाजी का वो ताज सिर्फ पौलुस रसूल के वास्ते ही नहीं बल्कि उन सबों के वास्ते भी रखा गया है या दिया जाएगा जो उसके ज़ुहूर के आरज़ूमंद हों। Our God is the one who gives crown. हमारा खुदा हमें ताज देने वाला खुदा है। And fifth thing in verse number 5. और पांचवी बात यहाँ पे हम 5वीं आयत में पढ़ते हैं, Who satisfieth thy mouth with good things. वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है।
Our God is a good satisfier. हमारा खुदा हमें आसूदा करने वाला खुदा है। Psalm 107 verse number 9 मज़ामिर की says, किताब 107 और आयत नंबर 9 में लिखा हुआ है, For he satisfieth the longing soul and filleth the hungry soul with goodness. क्योंकि वो तरसती जान को सैर करता है और भूखी जान को नेमतों से मालामाल करता है। Our God fills the hungry with the goodness, not with bad. खुदा हमारा जो है वो भूखों को बेशकीमत नेमतों से वो भरता है, बल्कि वो खराब चीज नहीं देता। He will never deceive us. वो हमें कभी मक्कारी से धोखा नहीं देता। When he feeds us, we will be satisfied. जब वो हमारे लिए ग़िज़ा बख्शेगा तो हम सैर होंगे, आसूदा बन जाएंगे। Even though we have little, but we kept before God, God will bless it, and so that we may be satisfied with that little. हमारे लिए शायद बहुत थोड़ा ही हमारे पास होगा, लेकिन जब हम उस थोड़े को ही खुदा के सामने जब हम रखेंगे तो उसे वो मुबारक करके बढ़ा देगा। We know a miracle done by Lord Jesus Christ while he was on earth. When 5 breads and 2 fishes were brought to him, he blessed them and gave it to the people. 5,000 people took that bread and they are satisfied. जब हमारे खुदावंद यीशुआ इस जमीन पर रहते थे, उन दिनों में उन्होंने क्या किया हमें पता है। हमारे खुदावंद यीशुआ ने 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और उनको तोड़कर जब लोगों को देने लगे तो तकरीबन 5,000 लोग खाए और सैर हुए। If we give it to the God and if he breaks it, we will be blessed and we will satisfy. अगर हम खुदा के हाथों में सौंपेंगे और जब वो उसे मुबारक बनाएगा तो वो हम सबों के लिए काफी होगा। Not only that, our Lord Jesus Christ in John's Gospel chapter 6 verse number 35 says, इतना ही नहीं बल्कि यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 6 और आयत नंबर 35 में लिखा हुआ है, And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. यहाँ पे खुदावंद यीशुआ ने फरमाया, यीशुआ ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। Because our God is great satisfier. क्योंकि हमारा खुदा बहुत बड़े इत्मीनान बख्शकर मुतमईन करने वाला है। And second part in the 5th verse of the Psalm 103 says, और इतना ही नहीं बल्कि मज़ामिर की किताब बाब नंबर 103 में लिखा हुआ है, The youth is renewed like the eagles. और आयत नंबर 5 के दूसरे हिस्से में, तू उकाब की मानिंद असर ए नौ जवान होता है। Our God is a renewer. हमारा खुदा जो है वो हमें फिर से बहाल करने वाला है। Isaiah chapter 40 verse number 31 says, एशिया की किताब बाब नंबर 40 और आयत नंबर 31 में लिखा हुआ है, Isaiah chapter 40 verse number 31, एशिया की किताब 40 की 31, But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with the wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. लेकिन यहोवा का इंतजार करने वाले असरे नाव जोर हासिल करेंगे, वो उकाबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे, हम बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। Our God renews our strength. हमारा खुदा हमारी ताकत हमें असरे नौ देता है। Our God renews everything that we are weary of. हम जिन जिन बातों में थक जाते हैं उन सबों में असरे नौ ताकत हमें पैदा करता है। He will renew our inner hearts. हमारे अंदरूनी दिलों को वो फिर से मजबूत करता है। That is the reason we read in the 2 Corinthians chapter 4 verse number 16. इसीलिए दूसरे कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 4 के आयत नंबर 16 में हम पढ़ते हैं, Apostle of Lord Jesus Christ is telling this, खुदावंद यीशुआ के रसूल यूं फरमाते हैं, For which cause we faint not, but though our outward
perish, yet the inward man is renewed day by day. इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि गो हमारी जाहिरी इंसानियत जाइल होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज नई होती जाती है। Even though our outward man perish in this world, इस जमीन पर हमारे जाहिरी इंसानियत खराब हो जाए, when we go through difficulties in our lives, मतलब हमारी जिंदगानी में जब हम मुसीबतों से गुजरते हैं, we may get tired. हम थक जाते हैं, But word of God encouraging us that लेकिन खुदा का कलाम हमें हमारी हौसला अफजाई करता the है inward man is renewed day by day by the Lord Jesus Christ. कि हम जाहिरी इंसानियत में थक जाते हैं, लेकिन हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज नई होती जाती है, Because those who are in the Lord Jesus Christ are new. क्योंकि हमारे खुदा यीशु में जो भी जितने भी हैं वो सब नए सिरे से पैदा हुए सो लोग हैं। According to 2 Corinthians chapter 5 verse number 16, लिखा हुआ है दूसरे कुरिन्थियों की किताब में बाब नंबर 5 और आयत नंबर 16 में, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away, behold, all things are become new. 17 में लिखा हुआ है, इसलिए अगर कोई माशियख में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गईं। And the seventh thing we see in this Psalm 103 is, और यहाँ पे सातवीं बात जो हम यहाँ पे मज़ामिर की किताब 103 में देखते हैं वो ये है, Psalm 103 verse number 6, first part. मज़ामिर की किताब 103 की बाब नंबर 6 के पहला हिस्सा, The Lord executeth righteousness. यहोवा सब मजलूमों के लिए सदाकत और अदल के काम करता है। Our God is a righteous judge. हमारा खुदा जो है वो आदिल है। Psalm chapter 9 verse number 8 says, यहाँ पे हम देखते हैं मज़ामिर की किताब बाब नंबर 9 और आयत नंबर 8 में देखते हैं, Psalm 9 verse number 8, मज़ामिर की किताब 9 की 8, and he shall judge the world in righteousness, he shall minister judgment to the people in uprightness. और वही सदाकत से जहां की अदालत करेगा और रास्ते से कौमों का इंसाफ करेगा। When God judges this world, he shows no partiality. जब खुदा इस जमीन पर अदालत करने लगेगा तो वो किसी इंसान पर तरफदारी नहीं दिखाएगा। He is righteous judge. वो रास्ती से पेश आने वाला खुदा है। Isaiah chapter 33 also says, एशिया की किताब बाब नंबर 33 में लिखा हुआ है, chapter 33 verse number 22, एशिया की किताब 33 की 22 में, for the Lord is our judge, the Lord is our lawgiver, the Lord is our king, he will save us. एशिया की किताब चैप्टर 33 और आयत नंबर 22 में लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि यहोवा हमारा हाकिम है, यहोवा हमारा तोरा देने वाला है, यहोवा हमारा बादशाह है, वही हमको बचाएगा। He is our judge, he gives the commandments what we need to follow. हमारा खुदा हमारा हाकिम है, वही हमारे बताएगा, हमें हुक्म देगा कि हम जिस पर अमल करें। And he is our righteous judge. और वही हमारे आदिल मुंसिफ है। 7 things we saw so far. 7 बातें हमने अभी तक देखी हैं। Our God is a forgiver. हमारा खुदा मुआफ करने वाला है। Our God is a healer. हमारा खुदा शाफी है। Our God is a redeemer. हमारा खुदा बचाने वाला है। Our God is a crown giver. हमारा खुदा ताज देने वाला है। And our God is a satisfier. हमारे खुदा चीजों से आसूदा करने वाला है। And our God is renewer. हमारा और छठी बात, हमारा खुदा हमें बहाल करने वाला है। And 7th thing, our God is a righteous judge. और 7वीं बात, हमारा खुदा जो है वो आदिल मुंसिफ है। And 8th thing, in the verse number 6 second part, और 8वीं बात आयत नंबर 6 के दूसरे हिस्से में है, our God is a defender of the oppressed. हमारा खुदा जो है 6 second part. सदाकत और उर्दू में पहले हिस्सा में है, यहोवा सब मजलूमों के लिए सदाकत और अदल के काम करता है। If we read the whole verse, we will understand, we will get these 2 points, that Lord executeth righteousness and judgment for all that are oppressed. यहोवा सब मजलूमों के लिए सदाकत और अदल के काम करता है। He will
do the judgment for all that are oppressed. That means he will stand for them, those who are oppressed. जितने भी मजलूम लोग होते हैं उन सबों के लिए खुदा खड़े रहता है। Psalm 146 verse number 7 says, मज़ामिर की किताब चैप्टर 146 और आयत नंबर 7 में लिखा हुआ है, which executeth judgment for the oppressed, which giveth food to the hungry, the Lord looseth the prisoners. जो मजलूमों का इंसाफ करता है, जो भूखों को खाना देता है, यहोवा कैदियों को आजाद करता है। And also Proverbs chapter 22 और verse number 22 to 23, अमसाल की किताब चैप्टर 22 वर्सेस 22 टू 23 में लिखा हुआ है, rob not the poor because he is poor, neither oppress the afflicted in the gate, for the Lord will plead their cause and spoil the soul of those that spoiled them. मिस्किन को इसलिए ना लूट के वो मिस्किन है, और मुसीबत ज़दा पर अदालत गाह में जुल्म ना कर, क्योंकि यहोवा उनकी वकालत करेगा और उनके गारतगरों की जान को गारत करेगा। Our God is defender of the oppressed. हमारा खुदा जो है वो मजलूमों का इंसाफ करने वाला है। He is telling, rob not the poor and oppressed. वो कहता है कि तू मजलूमों को या मिस्किनों को लूट ना ले। And seventh verse, the word of God is telling us that और सातवीं आयत में खुदा का कलाम कहता है, he made known his ways unto Moses. उसने मोशे को अपनी राहों पर चलाया, He revealed the truth unto Moses. उसने अपनी राहों को मूसा पर जाहिर किया। He is the revealer of the truth. वो राहों में सच्चाई बयान करने वाला खुदा है, And he is the one who makes his ways unto us. और वो कौन है? अपनी राहें हमें बताने वाला खुदा है। We are unworthy on this earth. हम तो इस जमीन पर नालायक लोग हैं। We are wandering without knowing where to go on this earth. इस जमीन पर कहाँ जाना है हमें पता नहीं है, लेकिन भटकते रहते हैं। But God sent forth his only son for us. लेकिन खुदा ने अपने इकलौते बेटे को हमारे वास्ते भेजा, And our Lord Jesus Christ through his body made for us a new way. और हमारे खुदावंद यीशुआ ने अपने बदन के जरिए से एक नई राह हमारे लिए पैदा की। We read this in Hebrews chapter 10. इब्रानी की किताब बाब नंबर 10 में इस बात को पढ़ते हैं। Hebrews chapter 10 इब्रानी की किताब बाब नंबर 10 verse number 19 and 20. और आयत नंबर 19 और 20। Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way, which he hath consecrated for us through the veil, that is to say, his flesh. बस ए भाइयों, चूंकि हमें यीशुआ के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकाम में दाखिल होने की दिलेरी है। And our Lord Jesus Christ revealed and said that he himself is the truth and the way and also the life. और हमारे खुदावंद यीशुआ ने कहा कि मैं ही राह और हक और जिंदगी हूँ। We don't know what is truth before our Lord Jesus Christ come to this world. हमारे खुदावंद यीशुआ इस जमीन पर जब तक नहीं आए तब तक लोगों को पता नहीं था कि बरहक या हकीकत क्या है। And he came and he revealed the truth to everyone. और उसने जमीन पर आया और सबों के लिए उसने सच्चाई जाहिर की। Those who believe in the Lord Jesus Christ will live in truth. जो कोई खुदावंद यीशु पर ईमान लाते हैं वो लोग सच्चाई से प्यार रखते हुए उसके तालिब होकर जीते हैं। And final, the 10th point is that our God is the one miracle worker. और 10वीं नुक्ता, आखिरी नुक्ता ये है कि हमारा खुदा जो है वो बहुत अजाइब और गराइब करने वाला है। He made known his ways unto Moses and he made known his acts unto the children of Israel. उसने अपनी राहें मोशे पर और अपने काम इस्राएलियों पर जाहिर किए। Psalm 77 verse number 14 says, तेहलीम की किताब बाब नंबर 77 और आयत नंबर 14 में लिखा हुआ है। 11 to 15, let us read. 77 11 to 15 हम पढ़ें। I will remember the works of the Lord, surely I will remember thy wonders of old. I will meditate also of all thy work and talk of thy doings. Thy way, O God, is in the sanctuary, who is so great a God as our God. Thou art the God that doest wonders. Thou hast declared thy strength among the people.
मैं यहोवा के कामों का जिक्र करूंगा क्योंकि मुझे तेरे कदीम अजाइब याद आएंगे। मैं तेरी सारी सनत पर ध्यान करूंगा और तेरे कामों को सोचूंगा। ए खुदा, तेरी राह मकदिस में है। कौन सा देवता खुदा की मानिंद बड़ा है? तू वो खुदा है जो अजीब काम करता है। तूने कौमों के दरमियान अपनी कुदरत जाहिर की। तूने अपने ही बाजू से अपनी कौम बनी याकूब और बनी योसेफ को फिदिया देकर छुड़ाया है। Our God who does miracles in our lives. हमारा खुदा हमारी जिंदगी में अजाइब व गराइब करने वाला है। Everything in our life we experience through the miracle of our Lord Jesus Christ. हमारी जिंदगी में जो कुछ हम जानते हैं या एहसास करते हैं, ये सब कुछ हमारे खुदावंद यीशुआ के बदौलत है। Coming and accepting the truth, the Lord Jesus Christ itself is a truth in our life. हमारे खुदावंद यीशुआ के पास आकर उनकी सच्चाई को या खुदावंद यीशुआ को कबूल करना ही सबसे बड़ी सच्चाई है। Forgiveness of sins is a miracle in our life. हमारी जिंदगी में जो गुनाहों की मुआफी हमने हासिल की है, वो ही बहुत बड़ी नेमत है। The life which we are living today is a miracle in our life. हमारी जिंदगियों में आज के दिन जो यीशुई जिंदगी हम जी रहे हैं, ये ही बड़ा अजीब व गरीब जिंदगी है। Exodus chapter 15 verse number 11 says, हम पढ़ते हैं खुरूज की किताब बाब नंबर 15 और आयत नंबर 11। Who is like unto thee, O Lord, among the gods? Who is like thee, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders? माबूदों में ऐ यहोवा तेरी मानिंद कौन है? कौन है जो तेरी मानिंद अपने तकद्दुस के बाइस जलाली और अपनी मदह के सबब से रौब वाला और साहिब करामात है। Our God do the wonders in our lives. हमारा खुदा जो है वो हमारी जिंदगियों में अजीब और गरीब काम करने वाला है। There is none like him. उसके बराबर कोई और नहीं है। So this great God with these 10 things which we learned so far, let us worship our God, let us bless the name of holy God. तो हमारे खुदा के बारे में हमने इन आयतों में 10 बातें सीखी हैं और इन 10 बातों के मुताबिक हमारे खुदा की इबादत हम करेंगे। He is our forgiver. पहली बात यह है कि वो हमें मुआफ करने वाला खुदा है। He is our healer. दूसरी बात वो हमारे शाफी है। He is our redeemer. तीसरी बात वो हमें बचाने वाला है। He is crown giver. चौथी बात वो हमें ताज देने वाला खुदा है। And he is our satisfier. पांचवी बात वो हमें आसूदा करने वाला है। And the sixth one, he is our renewer. और छठी बात वो हमें बहाल करने वाला है। And seventh thing is he is righteous judge. और सातवीं बात वो हमारे आदिल अदालत वो सच्चा आदिल अदालत करने वाला आदिल है। And eighth thing is he is defender of the oppressed. और आठवीं बात यह है कि वो मजलूमों की मदद करने वाला है। And ninth thing is that he is a revealer of the truth. और नवीं बात यह है कि वो सच्चाई को बयान करने वाला खुदा है। And tenth thing, he is a miracle worker. और 10वीं बात यह है कि वो अजाइब व गराइब करने वाला है। Let us worship this great God who chosen us, who cleansed us, and who forgiven us. और हमारे खुदा, इस अजीम खुदा की इबादत हम करेंगे इस कलाम के मुताबिक, जिसने हमें चुना है और हमें मुआफ भी किया है। May God bless this word. खुदा इस कलाम पर अपनी बरकत बख्शे।